Good afternoon, everyone. ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଛ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. କାହାକୁ ନିଦ ଲାଗୁନି ତ? No, ma'am. No, ma'am. ଆଚ୍ଛା. Is Souvik present in the class? No, ma'am. Okay. ତ ଆମେ ହେଲା geography ର ଗୋଟେ chapter କରିଲେ resources and development. ଠିକ ଅଛି. ତ today we will deal with a chapter from history. That is rise of nationalism in Europe. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So before starting with the chapter, तमरा standard 9 रे तमने पढ़ी थिबो French Revolution विषय. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So who can tell me a recap of French Revolution? French Revolution कौन थिला? किए कहि परिबो? शांतनु? Ma'am, French Revolution was about the king, was about the dynasty, Bourbon dynasty, in which Louis XVI was the present king. Was very one type of we can say that not cruelty, but he don't Was careless. serve their peoples like a king. So due to which many problems come here, like rise in nobility and clergy, due to which they torture the farmers and common peoples, due to which many protests started. And Acha. one of the important protest is the reign of terror, in which Jacobin Club, a new club, Jacobin Club formed, who helped the people to Raise the voice Started- against the king. Maximilian Robespierre, Acha. who helped the people to start a protest against king, so that they can remove their taxes and and started a new constitution. So many middle class peoples come together and fought for this. After hearing the news, the king sent their armies to the border, and also asked help from the neighboring countries like Austria, Prussia, and others. And their colonies also, it took their army from the colonies in the world, as at that time France have a large constitution and have many colonies in the world. Acha. So due to this, Louis XVI slowly come down and lost the war, and the Maximilien Robespierre, who become the new king of the place. And the Louis XVI informed of all peoples, it has been guillotined. At the last, Maximilian Robespierre also be guillotined in front of other peoples because of some cases, and his friends trapped him and guillotined him in front of every peoples. So like this, many protests have come, and at last, democratic monarchy comes in France, which in certain level down the cruelty and rate of tax increase in France. Slowly, people say that we need democracy. So after some times, democracy also come to the France. आउ किए किछि ऐड करिबो ना समस्ते सब कोई इससे सहमत हो ये आंसर से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन यही था? Ma'am. Sorry? You don't agree? French Revolution lasted for 10 years. 1789 to 1799. Yes. It began on July 14th, 1789, when revolutionaries stormed a prison called Bastille. The revolution came to an end
in 1799 when a general named Napoleon overthrew the revolutionary government and established the French consulate. ଦି ଜଣ ଯାକ ଠିକ କହିଲ ହେଲା ସିଏ ଅଧା ଆଉ ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକିନା କହିଲ to Napoleon. Okay, so before we come to the rise of nationalism in Europe, it is very important to take a recap of the French Revolution. French Revolution काहिंकी ହେଇଥିଲା से ହେଲା ପରେ कौन ହେଲା उसका इफेक्ट क्या था और उसके इफेक्ट की वजह से लोगों में कैसे अवेयरनेस आया और नेपोलियन कैसे आया नेपोलियन का रोल क्या था and what was his role in the rise of nationalism in Europe. So we will now go for a slideshow with which it will be better to understand. Okay, ready for it, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, nationalism in Europe. यहाँ पे आप लोग 4 फ्लैग्स देख रहे हो कौन से कंट्री का है Who can recognize the flags? Yes. Who all can recognize the flag? The left corner flag, left top. कौन से कंट्री का है? French. France. Sorry. Yes, right. उसके साइड में जो है राइट कॉर्नर को टॉप राइट कॉर्नर जो इंडियन फ्लैग का France. उल्टा है दैट इज इटली यस फ्रांस इटली नीचे का लेफ्ट कॉर्नर Germany. Germany. Very good. And the other one is we all know that flag. England. England का flag है. ठीक है. So these were the countries which were mainly involved when there was the rise of nationalism in Europe. Yes or no? Yes, ma'am. Then here is a painting. Ma'am, previous slide, ma'am, third flag was of German. See, top left is France, top right is Italy, ठीक है, bottom left is Germany, bottom right is what? Yes, ma'am. England. Germany टा हैला? Yes, ma'am. This was the question, na? हाँ. England. हाँ. Yes, ma'am. Okay. So here is a painting by an artist in 1848. He was named as Frederick Sorio. Now, what does this painting mean? This painting is visualizing that in future there will be a time when there will be nations who will be democratic and there will be social republics, and although he has imagined it like what will you say, that everything will be like a nation will have a separate identity and its separate flag, but he was like thinking much ahead of his time. But when we are talking about the rise of nationalism in Europe, if we see, this painting is remarkably true and it is like very near to what he thought, what he had dreamt of. Okay, so he had a 4-series print and this was the first, where we can see a woman holding a torch in one hand, a white statue is there holding a torch in one hand, and another hand she is holding a chartered book. Okay, and that means liberty from any kind of rule.
Okay, liberty from any kind of power, ultimate power, absolute power. So he dreamt of a world where the nation will have their identity and they will work for their people, and the people will have a voice while they in the working of the country also. So everyone will be happy. Okay. So this was a painting by Frederick Sorio in 1848. And based on this painting, we are going to read about the rise of nationalism in Europe. To begin with is the French Revolution. Okay, in 18th century, France had absolute monarchy. Okay, absolute monarchy means Louis XVI was the king at that time, and he literally ruled over France. Whatever he said was final. People did not have a voice in anything, and he was controlling the people. There was absolute monarchy. There was nepotism. What is nepotism? Anyone of you know what is nepotism? Ma'am, in nepotism, ma'am, in nepotism, if Louis XVI is king, then his son Louis XVII be also the king of the French. Yes. Whether he has the quality of being a king or he does not have the quality of being a king, but he will be given the position of a king. Why? Because of nepotism. माने एटाला भाई बंधु सी मोर भाईटा तो ताकू हैला ए पोस्टटा दे दबा, वो मेरा ऐसे एक दोस्त लगता है ना, तो उसका कैलिबर हो, उसका क्वालिटी हो कि ना हो, पर उससे हम वही पोस्ट देंगे. So इससे क्या हुआ? Those who are the able people, like those who had the quality, those who had the talent, they were ignored. ठीक है. So इसके वजह से क्या हुआ? People were sad. When people were sad, if the people of the country are not happy, so there will be like a disruption in the economy. ठीक है. People सब गुस्सा हो जाते हैं, फिर झगड़ा होगा. So this was the situation when Louis XVI was the absolute monarch in France, and he controlled everything. He practiced nepotism also, and this created discontent among the masses. Masses से क्या होता था? जैसे ये लोग सब राजा महाराजा बन जाते थे, इनका like they owned everything. जो लैंड था, जो प्रॉपर्टी था, जो प्रिविलेजेस था, जो फायदा मिलता था, ये लोग सब किसको मिलता था ना? वो जो किंग था, किंग के सब रिलेटिव्स को मिल जाता था. The relatives of the king and the friends of the king, they enjoyed the privileges. और जो masses थे, जो peasants, farmers और दूसरे लोग थे उनके रीजन में, उन्हें क्या होता था? उनको टैक्स देना पड़ता था. तो टैक्स तो तुम ले सकते थे जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग सब टैक्स देंगे. तो क्या होता है? उनके मन में बहुत दुख होता है. दुख होने से डिस्कंटेंट होता है. डिस्कंटेंट होने से ये लोग सब एक होके फिर क्या करेंगे ना, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे कि हम क्यों टैक्सेस दे, आप लोग तो एंजॉय करते हो सब प्रिविलेज, तो हम क्यों इतना सारा टैक्स भरे. Okay, so as a result of this, the wealth was concentrated in the hands of the privileged classes. Privileged classes मतलब जो राजा महाराजा थे, wealth उनके हाथ में था, और जो masses थे वो लोग सब taxes दे रहे थे. So there was a division in the society. ठीक है. फिर धीरे धीरे क्या हुआ? कुछ ये लोग सब मिलके क्या किए ना, उनके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? लुइस 16 के अगेंस्ट में धीरे धीरे होके ये लोग सब बोलने लगे कि नो, ही इज नॉट लाइक ही इज एक्सरसाइजिंग एब्सोल्यूट पावर, सो वी नीड टू आउटथ्रो हिम. हाँ, आउटथ्रो हिम करके ये उसके अगेंस्ट में सब एक ग्रुप बनना शुरू हो गया. जब शुरू हो गया तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है.
फिर जब लुई 16 ने देखा कि अच्छा ये लोग सब रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोग इनसे टैक्सेस लेके हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड टू रिवोल्ट, ये रिवोल्ट था ना, तो दे हैव स्टार्टेड टू रिवोल्ट, व्हाट ही डिड वाज ही ट्राइड टू कर्ब देयर पावर। ठीक है, जहां पे एक हो रहे थे जो जगह पे, वो क्या किया, जाके वो गेट ही बंद कर दिया। तो आप अगर मीटिंग के लिए आओगे तो मेरे अगेंस्ट डिस्कशन करोगे ना, जब अगर ये गेट बंद होगा आप मीटिंग नहीं कर पाओगे। तो ये सब लोग ने क्या किया, तो वो जहां पे मीटिंग पे जा रहे थे, Excuse ma'am. या सॉरी, Excuse ma'am. या टेल मी, Excuse me ma'am. या टेल मी, am I not audible? Ma'am, what is the meaning of collective identity? Ma'am, what is the meaning of Yes, Ma'am, I'm what is coming the to meaning that. of collective identity? Yes, I am coming to that. Shubham, I'm coming to that. Should we wait? मैम इधर से वॉइस थोड़ा देर, मैम इधर से वॉइस थोड़ा लेट में जा रहा है उधर। Okay. ठीक है. So you put yourself on mute. I'm coming to that. Okay. So जब लुई 16 ने गेट बंद कर दिया और ये लोग कहीं पे मीटिंग नहीं कर पाए, Yes, तो ma'am. तो वो लोग क्या किए, एक टेनिस कोर्ट में जाके ये लोग मीटिंग करने लगे. Why the meeting? Because they wanted their identity. और what identity उन्हें चाहिए था कि जब ये लोग इकोनॉमी को ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, when they are contributing to the economy, so why only the privileged classes will enjoy the facilities and why they will be giving the taxes. So they were doing that against the king. Who was the king? Louis 16. तो ये क्या था, इन लोग का कलेक्टिव आइडेंटिटी इसे बोलते हैं कि they were united for a common goal. Okay, and what was the common goal? That they will not pay excessive taxes and they also want to enjoy the privileges which was being exclusively enjoyed by the privileged classes. जो privilege मिल रहा था सिर्फ कुछ ही लोगों को, ये सबको मिलना चाहिए बोल के ये इन लोगों का यही था कलेक्टिव आइडेंटिटी. फिर आया क्या, ला पाट्री मतलब फादरलैंड. जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया इज आवर मदरलैंड, तो वैसे ही ये था ला पाट्री. इनको एक नेशन चाहिए था जिसके साथ ये आइडेंटिफाई कर सके खुद को. मोनार्की होने से क्या होता है, आज किंग ये टेरिटरी का राजा है, तो रातों रात की सुबह होने से अगर वो कोई और किंगडम को एनेक्स करता है, अटैच करता है, कि कॉन्कर करता है, जीत लेता है, फिर वो क्या हुआ, तो उसके साथ जो सब प्रजा है उसके, तो वो लोग उसी किंगडम में चले जाते हैं, उसी के अंडर में आ जाते हैं. तो देयर इज नो सेपरेट आइडेंटिटी फॉर देम. When monarchy was there was no identity at all. That is why they wanted their own fatherland. They wanted to be the citizen, les citoyen. Les citoyen का मतलब citizen. जैसे we are the citizens of India and India is our motherland. वैसे वो लोग चाहते थे कि फ्रांस उनका फादरलैंड बने और वो उसके सिटीजन. They wanted the French tricolor. French tricolor मतलब एक national flag. A national flag is also an identity for them. So they wanted the French tricolor. और National Assembly चाहिए था. National Assembly क्या करेगा? National Assembly उनका जो grievance है, फिर उनका जो कितना benefit हो रहा है, क्या benefit हो रहा है, grievance है मतलब किसी को एक problem है कि परेशानी है, तो वो कौन solve करेगा? अगर king solve करता है तो king partiality भी करता है कि नहीं, अगर पीजेंट्स को टैक्सेस ज्यादा देना पड़ता है तो हम क्या करें, फिर वो किंग बोलेगा हाँ पीजेंट्स से ही टैक्सेस देंगे. तो दोनों तरफ को समझने वाला और समझ के एक डिसीजन लेने वाला भी चाहिए था. तो दे वांटेड अ नेशनल असेंबली फॉर दैट. ठीक है, फिर हिम्स आया, ओथ्स, कमेमोरेशन ऑफ मार्टीर्स, जो लोग सब शहीद हो चुके हैं. लाइक वी हैव द मेमोरियल्स, those who are martyrs. Okay, जो लोग सब देश के लिए जान दे देते हैं, उनके नाम पे एक कमेमोरेशन चाहिए था. ठीक है, एक मेमोरियल चाहिए था.
और हिम्स और ओथ्स, जैसे अपना नेशनल एंथम है ना, डोंट वी हैव अ नेशनल एंथम ऑफ अ कंट्री? Yes, ma'am, we have. So also they wanted an identity by a national anthem. जैसे हिम्स और ओथ्स लिखा है वो नेशनल एंथम के बारे में लिखा है। फिर उन्हें चाहिए था क्या? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूनिफॉर्म लॉज। यूनिफॉर्म लॉज मतलब क्या? जो सबके लिए समान हो, ठीक है। There will be no partiality when laws are coming into the viewpoint. अगर मैंने कुछ गलत किया है, फिर और कोई है जो किंग का भाई है, उसने भी गलत किया है, बट बिकॉज वो किंग का भाई है, फिर किंग बोलेगा नहीं नहीं, आई विल फॉरगिव दैट पर्सन, एंड व्हाट विल द किंग डू? ही विल पनिश मी एंड ही विल पुट मी इन द प्रिजन। तो ये क्या हुआ? ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। पर जब यूनिफॉर्म लॉज आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जब यूनिफॉर्म लॉज आ गया, तो there was equal punishment if laws were broken. ठीक है। There was centralized administration. एक था और दूसरों के हाथ में पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, so that वो अपने अपने रीजन्स के बारे में लेके उसका लॉज फॉर्मेशन कर सके और उसको एनफोर्स हुआ कि नहीं लॉज, वो देख सके। ठीक है। There was abolition of internal duties and dues. मतलब जो पीजेंट्स लोग सब लोन लेते थे ना, तो उनके ऊपर रह जाता था कि आपका इतना पैसा ड्यू है, तो दिस जनरेशन वुड वर्क। ये जनरेशन वो किंग के लिए काम करता था। फिर उसके बाद जो अगर ये जनरेशन उनका डेथ हो गया, उनके जो बच्चे हैं वो लोग भी सब किंग के लिए काम करते थे, तो वो ड्यूज कलेक्ट होता जाता था। तो ये सिस्टम भी अबॉलिश किया गया। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम आया वेट्स और मेजर्स का। वेट्स और मेजर्स का यूनिफॉर्म सिस्टम आने का क्या मतलब है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स? जैसे अगर सेम वेट होगा, 5 kg हो, 10 kg हो, और वो वेट सब जगह पे सेम होगा, तो ये आसानी हो जाता है देखने के लिए कि हमें सब सेम चीजें मिल रहा है। जैसे I'll go to buy a rice, I'll go to buy rice, ओके, मुझे चावल खरीदना है किसी शॉप से। फिर मैं जाके देखती हूँ, अच्छा ये तो वो कंकड़ लेता है, बड़े बड़े कंकड़ लेके वो बोलता है अच्छा ये 5 kg का है, और आप ये इसे 5 kg मान के आपको इतना चावल दिया जाता है। फिर एक दूसरी दुकान में जाते हैं, वो छोटा वाला कंकड़ लेता है और बोलता है हमारे यहाँ तो यही 5 kg है। ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है, और सामान भी बहुत कम मिलते हैं, और बहुत चीटिंग भी होता था। तो इसीलिए क्या हुआ ना, ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आ गया। ठीक है। जो 5 kg का वेट है वो सब जगह पे 5 kg का सेम रहेगा। वो एक स्टैंडर्ड होके आएगा जिसके ऊपर 5 kg लिखा होगा कि 10 kg लिखा होगा, नहीं तो 15 kg लिखा होगा। तो इससे क्या होता है, कहीं पे पार्शियलिटी नहीं होगा, किसी के साथ चीटिंग भी नहीं होगा। ठीक है। फिर यूज ऑफ पेरिसियन फ्रेंच। फ्रेंच क्या हुआ? जैसे हम लोग का नेशनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। यस और नो? इंडिया में नेशनल लैंग्वेज क्या है? मैम हिंदी। हिंदी है। फिर इन लोग का क्या हुआ? ये लोग बोले कि हम लोग का नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच होना चाहिए। ठीक है। फ्रेंच होने से ये लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ हम लोग एक ही जगह से है, and this is our identity, so we all speak French as a national language. So these were the symbols of collective identity. Okay, are you clear now about the collective identity that you were asking? Yes. Who was asking about collective identity? Are you clear about it? Shubham. Shubham, are you clear about this? Sir, am I audible? Yes, ma'am.
So this was collective identity. Okay. And this was the beginning of the French Revolution. Then what did this French Revolution, what impact did it have on Europe? क्या हुआ इससे? So there was a mission to liberate the European countries from despotism. Despotism क्या होता है? Absolute power. एक जन के हाथ में पावर रहता है और वो उसके मन मर्जी के हिसाब से यूज करता है. तो जब फ्रेंच इम्पैक्ट आया यूरोप के ऊपर, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट, सो ये मिशन टू लिबरेट हुआ. किससे लिबरेट करना था? जो यूरोपियन कंट्रीज को लिबरेट करना था एब्सोल्यूट पावर के इन्फ्लुएंस से. ठीक है. जो आप बता रहे थे शांतनु, स्टूडेंट्स सेट अप जैकोबिन क्लब्स इन अदर कंट्रीज. ये सिर्फ फ्रांस के तक ही सीमित नहीं था. It also started to spread to different European countries. और वहां पे क्या हुआ? जैकोबिन क्लब्स, जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट कम्युनिटी था वहां पे, ये लोग सब जैकोबिन क्लब्स फॉर्म करने लगे, जो कि फ्रेंच इन्वेशन, these clubs helped the French invasion. जो फ्रेंच का था वो इन्वेड करता था इनके कंट्रीज को. क्यों इन्वेड करता था? ताकि इन्हें फ्री कर सके. किससे फ्री करेगी? डेस्पोटिज्म से. So that these French invasion will free the countries from despotism, that is absolute power. So this was the impact on Europe. ठीक है. तो अभी क्या हुआ फ्रांस में? जो absolute monarchy था, that came down. फिर क्या हुआ? There was limited monarchy based on public will. People started controlling the monarchy. So there was limited monarchy. Okay. फिर एक था जगह Bastille. The French Revolution and Bastille, ये दोनों बहुत closely connected. How? Bastille was the place where the monarch would keep the people, its peasants, as prisoners. और वहां पे वो लोग आर्म्स और अम्युनिशन भी रखते थे. तो जब इतना सब लाइक पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग, हाँ, फिर जो डिफरेंट कंट्रीज को ये लोग कॉन्कर करना चाहते थे, उसके नेबरिंग कंट्रीज को, उसके लिए क्या चाहिए था? आर्म्स एंड अम्युनिशन चाहिए था. तो Bastille was the place where the arms and ammunition were kept. So what happened? The people came together and they went to try and bring the arms and ammunition. वहां पे जाने के बाद क्या हुआ? There was open firing from the people, from the king's men. ठीक है. जो किंग लुइस था उनके मैन की तरफ से ओपन फायरिंग हो गया. जो ओपन फायरिंग हो गया, ये लोग तो बहुत गुस्सा हो गए. फिर ये लोग अंदर घुस के सारे सोल्जर्स को मारे. फिर जो वहां पे जो प्रिजनर्स थे, कौन प्रिजनर्स थे? प्रेजेंट्स लोग प्रिजनर्स थे. फिर वो प्रिजनर्स को निकाल दिए वहां से और सारा जो आर्म्स एंड अम्युनिशन था उसे लूट लिए. ठीक है. और ये कब हुआ था? दिस वाज ऑन जुलाई 14th. इसीलिए जुलाई 14th को आज तक नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है. Like we have the national holidays, like what are the national holidays in our country? What are the national holidays in our country? Who will answer? Ma'am, Independence Day. Yes. And Republic Day, Gandhi Jayanti. very good. So France में कौन सा What is it? national? Sorry. So France में कौन सा national holiday है? July 14th is the national holiday for France. Okay. So ये हो गया French Revolution. ठीक है. ये वाला clear till here? Yes, ma'am. Recap हो गया French Revolution का? Yes, ma'am. Very good. फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट था वो क्या हुआ?
post revolution, ठीक है, there was coalition of England, Spain, Poland, Prussia, Austria, ठीक है, ये सब एकजुट हो गए किसके लिए? they tried to come together, क्योंकि सबको चाहिए था कि हाँ हम लोग का like we don't want monarchy, we want a democracy and we want a fair government for us, हमें भी fair government चाहिए था, ठीक है। फिर तब आया कौन? नेपोलियन। नेपोलियन कैसे आया? Who was Napoleon? He was the lieutenant in the French army, ठीक है, and because of his work he was promoted to being the commander in the French army. जब नेपोलियन आया, he tried to outthrow monarchy, ठीक है। What he did was he tried to conquer and annex the kingdoms that was near France. और फिर उसने देखा ये जो फ्रेंच आर्मी है इसके भी like there are some differences, rivalries था आर्मी में, तो नेपोलियन ने उसी का फायदा उठाया। नेपोलियन ने उसका फायदा उठा के he tried to make a gap between the army and it was then that he tried to conquer France and he became the emperor of France. Okay. फिर आया नेपोलियन का कोड। What was Napoleon code? 1804 में जो आया, he became the emperor of France in 1804. Then उसका एक कोड आया 1804 में. It was called as the Napoleonic Code. क्या था वो? The Code of Laws. क्या था वो? Anyone? Revolutionary principles which were incorporated in the administrative field by Napoleon. Yes. Napoleon tried to bring many administrative reforms. Although he said he did not support the absolute power, what he did was he tried to bring administrative reforms. और जब administrative reforms आया, administrative reforms मतलब चर्च को पावर दिया गया, एजुकेशन के लिए स्कूल्स एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, एंड ही ट्राइड टू abolish the privileges that was for the certain society only. जो राजा महाराजा के लिए privilege था वो उसे abolish किया। abolish करके क्या किया? No, it will be the uniform law. सबके लिए समान रहेगा वो law, ठीक है। जब वैसे करने लगा तो the people were happy. जो एक राज्य में प्रजा होता है वो बहुत खुश थे कि अच्छा सबके लिए ये लॉ सेम रहता है, हमें इतना टैक्स देना नहीं पड़ेगा, हमारे लिए इतना सारा पनिशमेंट भी नहीं होगा, हम लोग सब अपना बात भी बोल सकेंगे, तो सब कोई खुश थे नेपोलियन के टाइम पे। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो एक डिक्टेटर टाइप का क्रिएट करने लगा, ठीक है। फिर नेपोलियन ने क्या किया, बोला कि हाँ देयर इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड वी कैन abolish the feudal system. And he did abolish the feudal system also. जो peasants थे जो लोन लेके सब काम करते थे generations by generations, वो सब वो हटाने की कोशिश किया। And then he tried to put everyone into work. जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। So there was removal of guild restriction in town. ऐसा नहीं था कि ये राजा का बेटा है तो ये राजा बनेगा और ये अगर कोई फार्मर का बेटा है ये फार्मर बनेगा। तो जैसे स्कूल सब एस्टैब्लिश हो गया ना तो सब कोई पढ़ने लगे और जब पढ़ने लगे तो ये लोग सब अपना राइट्स भी जानने लगे, ठीक है। फिर जब राइट्स जानने लगे देयर वाज यूनिफॉर्म लॉ, देयर वाज वेट्स एंड मेजर, एक नेशनल करेंसी भी था, तो सब कुछ बहुत ही लाइक जैसे किंग के टाइम में था, सब कोई बहुत खुश थे कि नहीं हमें तो ये सब समान राइट्स मिल रहा है, इक्वल राइट्स मिल रहा है। धीरे धीरे ये सब भी लास्ट नहीं किया नेपोलियन के लिए। क्यों लास्ट नहीं किया? देयर वाज रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब विद्रोह, ठीक है। क्यों विद्रोह था? जैसे मैं एक डिक्टेटर हूँ
फिर मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, फिर मैं सोचूंगी नहीं मुझे इंडिया के साथ मुझे पाकिस्तान भी चाहिए, मुझे चाइना भी चाहिए और मैं वो सारा कंट्रीज कॉन्कर कर लूंगी। पर इमोशंस क्या रहेगा, मेरा फीलिंग्स क्या रहेगा, इंडियन ही रहेगा। तो उसमें क्या होगा, ये जो सब पाकिस्तान के हो या चाइना के लोग हो, ये लोग सोचेंगे ये हमें कंट्रोल तो कर रही है पर इसका क्या है, ये थोड़ा इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ। तो जैसे हम लोग का तो पॉलिटिकल फ्रीडम ही चला गया। ठीक है, फिर ये सब करने में, ये जो कॉन्कर करने में, वॉर करने में, उसे पैसा भी चाहिए होगा। कहाँ से लेगा ये पैसा? जो सब किंगडम्स को वो अटैच करता था, जो कॉन्कर करता था, उसके ऊपर ये टैक्स लगा देता था और बहुत अधिक टैक्स लगाता था। इससे क्या हुआ, जो सब लोग खुश थे कि अच्छा हमारा तो अभी मोनार्की खत्म हो गया और नेपोलियन अभी आया, रूल कर रहा है हमें और हमें सब इक्वल राइट और फ्रीडम दे रहा है, वो धीरे धीरे रियलाइज करने लगे कि कहाँ पे ये लोग गलत थे। इन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, इनका पॉलिटिकल फ्रीडम भी अभी चला गया, क्योंकि नेपोलियन तो जो डिसीजन लेता था फ्रांस के तरफ होके लेता था, फ्रांस के तरफ इमोशनल होके लेता था। फिर सेंसरशिप ऑफ न्यूज एंड व्यूज। आई वांट टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है पर मैं वो नहीं कह पाऊंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देयर विल बी पीपल हु विल रेस्ट्रिक्ट मी, बोलेंगे नहीं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लोग का है ना, सेंसर बोर्ड रहता है फिल्म में। Everyone knows about the censor board in the films. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. हाँ, सेंसर बोर्ड में Yes, क्या ma'am. होता है, जब एक फिल्म आता है फिर सेंसर बोर्ड उसे पहले देखता है। ठीक है, देन दे डिसाइड कि ये फिल्म पब्लिक के लिए आना चाहिए कि नहीं, ये चिल्ड्रन व्यूइंग में आना चाहिए कि नहीं, जैसे 18 इयर्स के बिलो देना चाहिए कि 18 इयर्स के अबव देना चाहिए, ये कंटेंट इसका रहना चाहिए कि नहीं। हाँ मैम प्रीवियस स्लाइड एक बार दिखा दीजिए मैम, वो लास्ट मैम नेपोलियनिक कोड का लास्ट पॉइंट नहीं लिख पाया। तुम लिखो मत, आई विल पास इट ऑन टू यू, डोंट यू वरी। शुभम मैम लिख दिया मैम, हो गया हो गया, लिख दिया। अच्छा ठीक है, आई विल पास इट ऑन, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, Yes, so ma'am. Yes, ma'am. there was no political freedom during Napoleon, there was increased taxes, फिर censorship जो हम बोल रहे थे अभी, जैसे सेंसर बोर्ड करता है। तो अगर शुभम का कोई व्यू हो, ठीक है, वो नहीं बता सकता है मुझे, देयर विल बी समवन जो कि सेंसर करेगा, नहीं शुभम ये मत बोलो, इसे काट दो, ये वाला स्टेटमेंट मत बोलो। ठीक है, इसे बोलते हैं सेंसरशिप। तो ये भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो गया लोगों के लिए। फिर था क्या, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी टू फाइट वॉर्स। ये इसका क्या मतलब है, जो आर्मी था, ठीक Ma'am, है, they were forced to fight wars with the army. यस, जो आर्मी था उन्हें क्या किया गया, जब हम ज्यादा से ज्यादा कंट्री कॉन्कर करते हैं तो हमें ज्यादा लोग चाहिए ना आर्मी में। तो ये लोग क्या करते थे, एक कंट्री को हमने कॉन्कर किया, वहां से कुछ लोग लेते थे और उन्हें फोर्स करते थे कि तुम हमारा आर्मी ज्वाइन करो, यू विल टू ज्वाइन आवर आर्मी। ओके, सो देयर वाज सम अनहैप्पीनेस विद द क्राउड, ये बोले क्यों हम लोग क्यों ज्वाइन करेंगे आर्मी, अगर ये हमें रूल करना चाहता है तो हमारा बात भी समझना चाहिए ना, ही शुड आल्सो अंडरस्टैंड अस ना। तो व्हाई इज ही फोर्सिंग अस टू जॉइन द आर्मी, हमें फोर्स क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे होके लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया नेपोलियन के खिलाफ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे नेपोलियन का पावर कम होता गया। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आए हम कहाँ पे, यूरोपियन सोसाइटी। देयर वाज द रिफॉर्म, देयर वाज द कोड ऑफ लॉज। अगर आएगा नेपोलियनिक कोड और कोड ऑफ लॉज, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर आएगा डिफाइन द कोड ऑफ लॉज ऑफ 1804, नहीं तो नेपोलियनिक कोड फॉर 1804, ये दोनों का आंसर सेम रहेगा। दैट इज this slide, return of monarchy, administrative reforms, removal of privileges, equality before the law,
ये सारा पॉइंट्स आएगा एक ही आंसर में, ठीक है? क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक कोड हो गया? Then Yes, we ma'am. will come to the making of nationalism in Europe. ठीक है? यूरोप का कोई सेपरेट आइडेंटिटी उस टाइम पे नहीं था। जर्मनी हो, इटली हो, स्विट्जरलैंड हो, ये सब कौन कंट्रोल करता था? द किंग, द मोनार्की। किंग को मोनार्की भी बोलते हैं। तो किंग कंट्रोल करता था। आइडेंटिटी क्या है इन लोग को पता नहीं था तब तक, ठीक है? वो सेपरेट स्टेट क्या होता है, उसका नेशनल एम्ब्लेम क्या होता है, एक नेशनल लैंग्वेज क्या होता है, ये कुछ भी नहीं पता था। देयर वर 3 क्लासेस, द अपर क्लास, द लोअर क्लास एंड उसके बीच में कौन था? मिडिल क्लास। तो जैसे एजुकेशन तो मिल गया सबको, सब कोई एजुकेटेड होने लगे, तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ऐसे होके बनने लगे। जब एजुकेशन आता है, देन वी स्टार्ट टू थिंक ये राइट है कि रॉन्ग है? यस और नो? ओनली इफ यू आर एजुकेटेड यू कैन थिंक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। बिना एजुकेशन के Yes, तो ma'am. कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. So when they thought that whether this is right or wrong, they started to educate themselves. उनके बच्चे भी एजुकेशन में आ गए, फिर उन लोग के पास भी पैसा आने लगा, वो लोग काम करते थे और पैसा भी आता था। They gave service to the society. उसी दौरान क्या हुआ? इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने लगे, देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है? उसी टाइम पे they started to think that why are we not getting the privileges in spite of our education? हमारे पास एजुकेशन भी है और हम सर्विस भी देते हैं सोसाइटी को, फिर हमें इक्वल प्रिविलेज क्यों नहीं मिलता है? So that made them another section of the society. They were termed as the middle class, the educated, and they had money also. They were even rich. Many of them were rich, although not all. But उस टाइम पे क्या होता था? अपर क्लास। अपर क्लास किसको बोलते थे? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो राजा महाराजा थे जिनके पास बहुत सारे जमीन था, वो जमीन को क्या करते थे? पेजेंट्स लोग जो थे, फार्मर्स लोग जो थे, उनको रेंट में देते थे। वो लोग उसके ऊपर फार्मिंग करते थे और उसका जो प्रोड्यूस रहता था वो जाके मैक्सिमम वो किंग को दे देते थे। तो किंग जो एरिस्टोक्रेसी लैंडलॉर्ड जो सब थे, वो लोग फायदा में रह गए, लैंड भी उनका, पर वो काम नहीं करते थे, किसी और को काम करवाते थे और जो प्रॉफिट आता था वो लोग एंजॉय करते थे। तो कितना डिफरेंस था ना? तो और पर ये एरिस्टोक्रेसी जो थे वो डिफरेंट रीजन के थे। मतलब जैसे जर्मनी का एक है, कोई एरिस्टोक्रेट है, फिर इटली का कोई है, फिर स्विट्जरलैंड का कोई है। पर इन लोग का आइडेंटिटी क्या था? ये लोग सब एरिस्टोक्रेट्स थे। That was their identity. Although they were few in number, but they were identified as the aristocrats. और इन लोग का कनेक्शन कैसे रहता था? इन लोग का कलेक्टिव आइडेंटिटी भी था। कैसे? कि हम लोग एरिस्टोक्रेट्स, जो शादी होता था इन लोग के बीचों बीच ही होता था। सो इससे क्या होता था? उनका किंगडम भी एक्सपैंड करता था एंड दे आल्सो हैव द पावर कि उनका लैंड भी एक्सपैंड होता था, ठीक है? और इसी तरह से ये लोग कंट्रोल करते थे। सो अगेन दैट वाज आल्सो अ मेजर रीजन व्हाई द मिडिल क्लास सोसाइटी बिगैन टू रिवोल्ट। मिडिल क्लास सोसाइटी को ये सब पसंद नहीं था कि ये लोग कुछ काम वाम करते नहीं है, जस्ट बिकॉज उनका लैंड है, फार्मर्स को सब काम करवाते हैं और हमें काम करवाते हैं और एंजॉय करते थे प्रिविलेजेस, ठीक है? जैसे ये था एरिस्टोक्रेट, पिक्चर्स में आप देख सकते हो, एरिस्टोक्रेट था जो राजा महारानी की तरह सज धज के रहते थे, और जो पीसेंट क्लास थे वो लोग कंटिन्यूअसली काम करते थे, और बीच में ना इधर का ना उधर का जो रह जाता था वो था मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा भी होते थे और कंट्रीब्यूट भी करते थे इकोनॉमी को, पर उन्हें कुछ मिलता नहीं था, रिकॉग्निशन नहीं था उनके लिए, ठीक है? So what was the impact of industrial revolution on the
मिडिल क्लास। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, यस और नो? जब इंडस्ट्री सेटअप हुआ तो क्या हुआ, जो लोग सब थे विलेजेस में वो लोग टाउन्स की तरफ जाने लगे, यस और नो? सो देयर Yes, वाज, ma'am. तो सिटीज और टाउन्स एक्सपैंड करने लगा, यस, there was the growth of cities and towns. And Then there was the emergence of the commercial class. Commercial class मतलब business class, जो अपना बिजनेस सेल करके इकोनॉमी को प्रॉफिट देते थे और सोसाइटी में पैसा कमा के अपना नाम करते थे. It was emergence of commercial classes. So there was rise of middle class consisting of industrialists, businessmen and professional. Professional मतलब कौन थे? जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो थे वो आने लगे मिडिल क्लास में. ठीक है. So basically the society was divided into three: the upper class, the lower class, और उसके बीच में रह गए कौन? मिडिल क्लास. मिडिल क्लास में कौन आएंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे एंड प्रोफेशनल्स आएंगे. ठीक है. इन लोग को क्या चाहिए था? ये लोग सब एजुकेटेड थे और लिबरल माइंडेड थे. मतलब अगर हम काम करते हैं देन वी वांट मनी इन रिटर्न. हम किसी राजा महाराजा को नहीं जानते हैं, हमने एजुकेशन लिया है एंड वी आर वर्किंग, सो वी विल बी पेड. वी नीड रिकॉग्निशन and they wanted the removal of aristocratic privileges. ये सब like they were they wanted to throw the king's power. जो aristocratic society था इससे outthrow करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग तो कुछ करते नहीं थे, सारा काम तो इन्हीं लोग मिडिल क्लास लोगों के बीचों बीच हो जाता था. ठीक है. So there was an uprise. So this was the growth of urban middle class. Look at the picture, children. कितना भीड़ लग रहा है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, लोग आ रहे हैं, विलेजेस छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि विलेजेस में क्या है? फार्मिंग है. फार्मिंग में कितना फार्मिंग करेंगे? और ये तो सारा लैंड था जो वो एरिस्टोक्रेट्स के अंडर था ना, तो जो भी कुछ काम, जितना भी काम करते थे ये एरिस्टोक्रेट्स लोग वो पैसा ले जाते थे, तो इनका तो कुछ फायदा नहीं हुआ. तो द पीपल स्टार्टेड मूविंग टू सिटीज एंड टाउन्स. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ? अर्बनाइजेशन भी हो गया. सिटीज एंड टाउन्स जब एक्सपैंड किए तो उसे क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन. सो सिटीज एंड टाउन्स बिगैन टू ग्रो. ठीक है. सो this brought an end to autocracy and the clerical privileges. The freedom of the individual and equality before law was there. There was the freedom of press. ठीक है. ये जो सारा एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस था और उनके हाथों में था, ये सब एंड होने लगा धीरे धीरे. फिर इंडिविजुअल क्या करता है, उसका क्या टैलेंट है, उसका क्या कैपेबिलिटीज है, ये देख के देयर वाज इक्वलिटी बिफोर लॉ. सब लॉ के सामने बराबर है. ठीक है. एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस. प्रेस कैसा था उस टाइम पे? तो टीवी नहीं था, मीडिया नहीं था, तो प्रेस कैसा था? इट वाज ओनली इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स. Yes. Any doubt till here? No, ma'am. No, ma'am. So this was social liberalism. सोसाइटी का क्या एडवांसमेंट हुआ? This was social liberalism. फिर आया क्या? पॉलिटिकल लिबरलिज्म. गवर्नमेंट का कंसर्न था, कॉन्स्टिट्यूशन था, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट था. ठीक है. गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता था? द ऑर्डिनरी पीपल. वोटिंग शुरू हो गया, इलेक्शंस होने लगा. People had a voice in the government. They said that we want this, we don't want that. Okay. And there were laws according to the happiness of the people. जो लोगों के लिए अच्छा है वही laws आने लगे. There was universal suffrage. मतलब women and non-propertied men. जो भी हो सबको equality मिलता था. ठीक है. Any doubt till here? नहीं तो बहुत सारा हो जाएगा. Then you will be unable to grasp everything. फिर बोलोगे मिस क्या पढ़ा रही है, सिर्फ हिस्ट्री ये वो करके सब डाल देती है सर में. Any doubt till here?
No, ma'am. No, ma'am. Are you clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज कौन सम अप करेगा? कहाँ से शुरू होता है नेशनलिज्म इन यूरोप? 2 मिनट्स में कौन सम अप Ma'am, करेगा? European. Ma'am, Ma'am, after the French resentment Revolution. against France and Napoleon. हाँ, And French After Revolution. the resentment against France and Hmm. Napoleon, European revolution starts with the European city of upper class, lower class, and the rise Middle of class. middle class. मिडिल क्लास, यस, ठीक है। फिर उससे क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, फिर अर्बनाइजेशन होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। New groups formed. Yes. So new groups are formed. The outlook of the people also changes. ठीक है। So Now there they is- are they trust in liberalism, not in monarchy. तो फ्रांस में क्या हुआ? पहले था क्या मोनार्कियल रूल था, एब्सोल्यूट पावर, नेपोटिज्म। फिर वो नेपोलियन के आने से क्या हुआ? डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ हो गया। एब्सोल्यूट पावर तो नहीं था, पर विल ऑफ द पीपल था, कंसेंट ऑफ द पीपल था। फिर जब नेपोलियन आए, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लेके आए, जो लोग पहले तो खुश हो गए लोग कि अच्छा ठीक है, हमें तो फ्रीडम मिल गया। फिर धीरे धीरे वो नेपोलियन को भी आउटथ्रो करने लगे। फिर जैसे एजुकेशन आ गया, एजुकेशन स्कूल्स वगैरह सब एस्टेब्लिश हो गया नेपोलियन के जो सब रूल्स के हिसाब से। फिर देन विद एजुकेशन एंड ऑल, पीपल स्टार्टेड ब्रॉडनिंग देयर आउटलुक। वो अपने आउटलुक, एजुकेशन के वजह से वो लोग अपना आउटलुक चेंज किए। जो सोचते थे उनका सोच बदला। जब सोच बदला, वो लोग रियलाइज किए कि हम अगर सर्विस देते हैं तो हमें अपना सर्विस का इक्वलिटी मिलना चाहिए। फिर धीरे धीरे होके ये जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, इन लोग को आउटथ्रो हो गए। फिर जो काम करेगा उसी को अपना मेहनत का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जैसे था वो नेपोटिज्म, वो भी नहीं रहा। जिसका कैपेबिलिटी है, जो एबल है, उसी को काम मिलता है, ना कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, उसी हिसाब से नहीं मिलता है। बट इट इज नॉट एक्चुअली राइट। आर वी रियली फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ थिंग? अभी तक भी नेपोटिज्म है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत जगह पे है जहाँ पे एबिलिटीज और टैलेंट्स रह जाते हैं पीछे और नेपोटिज्म आ जाता है। पर इसका मतलब नहीं कि दैट वी विल लूज होप एंड वी विल सिट एट होम कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है और चलो हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं, हम भी नहीं पढ़ाई करेंगे। नो, वी विल वर्क हार्ड टिल वी सक्सीड in spite of all the blockages, in spite of all the nepotism, we will definitely get a recognition. जैसे सर ने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन वीडियो दिखाया था ना, जो है हमारे पास, we will use to our maximum ability and definitely we will win the situation. Okay? Yes, So, ma'am. does everyone have the book? सबके पास बुक है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है, सब अपना बुक्स को लाइक यू ऑल गो थ्रू इट। हाँ, और कोई डाउट होगा फिर मुझे बताना। आज सौविक एब्सेंट है क्या? Yes, We have not registered for a SST, social science.